introduction to statistical analysis, we understood the basic framework of statistics as a subject discipline. And by far, you know very well that statistics has got two distinct baskets. The baskets of different methods or techniques of performing analysis. The first basket is considered as descriptive statistics, and the second basket is considered as inferential statistics. As I told you yesterday, descriptive statistics mostly deals with data presentation and specifically the tabular presentation of data and visual presentation of data, means preparation of different types of graphs. And at the same time, in descriptive statistics, generally we compute numerical measures. These are considered as your summary statistics measures, which typically includes mean, mode, median, standard deviation, variance, standard error, etc. And the second basket of statistics is inferential statistics, which deals with hypothesis testing part. This is what we understood yesterday. Yesterday, we again had a discussions on how to enter data in SPSS. And you know very well, there are two methods of entering data in SPSS. The first method is directly entering the data into SPSS manually. And the second method is preparing a master chart in MS Excel spreadsheet and importing that master chart in MS Excel spreadsheet into SPSS window. And then subsequently, we prepare our data by defining the numeric your variable type, then coding it and all, defining the scale of the variable and all. So this is what we learned yesterday. Today we'll be focusing on performing analysis, and that too the descriptive analysis of data. So this is the major theme of today's session. कल जैसे हमने देखा descriptive statistics, inferential statistics. So today we will cover descriptive statistical analysis part, and tomorrow onwards we'll be dealing with inferential statistics part, that is hypothesis testing part. There are various types of tests that we are going to learn in the next 3 days, including your t-test, then chi-square test, ANOVA is there, different types of t-tests are there, etc. So we'll touch upon these particular issues tomorrow onwards, the inferential statistics part. And today's session is typically devoted to computation of descriptive statistical measures using SPSS software. This is the framework of today's session. We will move with regard to these particular 4 aspects. At the outset, we'll just try to understand different levels of measurements. And in the second part of our today's discussion, we'll be performing analysis of nominal data. Then the third part is computation of summary statistics, which is considered as analysis of a ratio data or interval data. And eventually, we'll try to compute Cronspach alpha, which is considered as a reliability measure. So now we are starting our discussions with the first section, which reads as levels of measurement. You must be remembering that yesterday we have learned that whenever we perform any kind of analysis in SPSS software, so typically we start our operations with variable view window. And in variable view, we define our variables. And in data view, we enter the data on the respective different variables under consideration. Now in variable view, we have learned yesterday, in name, we are supposed to define our variables like v1, v2, v3 and all. Then the type, whether it is string or numeric, that we are supposed to define. Then width of characters, then decimal places, then the label that you wish to, you wish to have in your output window of the variable, obviously. Then the values, these are the codes, you can say,
of the categorical variables. Then missing, we generally don't do anything here. Columns, we generally don't do over here. Align, typically right alignment, we generally set, and this is the default setting. And now we are onto this. So yesterday I have explained you this particular part. And now I'm explaining you this particular part. Whenever you click on measure, this window will flash. And as you can see, whatever variables you are dealing with, V1, V2, V3, for all the variables, you need to define measure. Measure means the level of scale. And as you can see, in SPSS, it is providing you three different options to define your variables. You may go with scale as an option, then ordinal, and then nominal. These are considered as measures or measurement scales. And firstly, we will just understand what is the meaning and how to define a variable scale. कि हमारा V1, if suppose gender ये variable है हमारा, तो gender variable ये तीन में से कौन सा है? क्या उसको scale variable कहेंगे, ordinal कहेंगे या nominal कहेंगे? और इसको जो जितने भी variables हैं, उन सब variables को हम scales में define करते हैं. तो वो scales कैसे define करेंगे हर variable के लिए? We are on to it now. So this is what is under discussion, levels of measurements. There are four different levels of measurements of variables. The first level is considered as nominal level. The data you generate on nominal variables is considered as nominal data. Second level, I am reckoning it as, it is ordinal level or ordinal variable. The data you generate on ordinal variable is considered as ordinal data. And the third level is interval. And this is interval scale. The data you generate on interval scale is considered as interval data. And eventual, the pinnacle you can say, it is the apex level, that is ratio scale. And the data you generate on ratio scale is typically considered as your ratio data. और आप देखेंगे SPSS हम लोगों को ये तीन ही ऑप्शन देता है. SPSS क्या कर रहा है, ये थर्ड और फोर्थ लेवल जो है इसको क्लब करके सिंपली इसको एक लेबल दिया गया है स्केल. क्योंकि ये दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इंटरवल और रेशियो में. There is just thin line of difference between interval and ratio scale data that I am going to explain to you. But SPSS consider both these variables as scale variable. And as you can see, there is nominal, the first level, then ordinal, and then third, fourth is your scale. तो समझने की कोशिश करते हैं ये सब टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है. और मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, हम लोग जो वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, हर एक वेरिएबल ये किसी न किसी एक स्केल को बिलोंग करता है. थोड़ा जस्ट टू मेक द थिंग्स सिंपलर, आपका क्वेश्चनर आपने बनाया है, आपकी आंखों के सामने जस्ट इमेजिन करिए उसका पिक्चर. आप देखेंगे आपके क्वेश्चनर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड. लाइक while asking name of the respondent, you are simply putting name and then you are leaving some space, और आपका respondent उसका जो भी नाम है वहां पे लिखेगा. Then you are asking about the gender of the respondent and you are providing your respondent with two options, male and female. Option A is male, option B is female. Then there are different types of, like 1 to 10 की rating है, and you are just simply asking how is your feedback regarding this particular workshop. जो हमारा SPSS का वर्कशॉप चल रहा है, ऑर्गेनाइजर शायद बोल रहे कि आपका फीडबैक कैसे रहा, 1 to 10 में इसको रेट करिए. तो दिस इज अगेन अ रेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. Then there may be a kind of question that you may incorporate in your questionnaire, like strongly disagree, neutral, agree, strongly agree. इस प्रकार के भी तो क्वेश्चंस होते हैं. इसका मतलब क्या है, हम जब क्वेश्चनर तैयार करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को ही अलग अलग प्रकार की स्केल माना जाता है. और इन जनरल आपके क्वेश्चनर में जितने भी क्वेश्चंस हो गए, 30-40 जितने भी क्वेश्चंस हो गए, उन क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है.
और वो 4 कैटेगरीज आपकी स्क्रीन पे है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। शायद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि जब हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करते वक्त द सर्वे फॉर्म वी हैव प्रिपेयर्ड एंड वी हैव आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल टाइप टू आर रेस्पोंडेंट। और ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को ही अलग अलग प्रकार की स्केल माना जाता है, और ये स्केल्स 4 ही प्रकार की होती है, और स्पेसेस में इसको 3 प्रकार की ही माना गया है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, स्केल। अभी थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। पहले समझ लेते हैं ये लेवल्स है। हाँ, ये लेवल यानी चढ़ता क्रम, इसी ऑर्डर में ये आती है। द लोवेस्ट लेवल इज नॉमिनल, the second lowest sorry the next level is ordinal, and then the subsequent next level is interval, and the eventual level is ratio। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो 4 प्रकार की स्केल्स है, इनको फिर से 2 बास्केट्स में डिवाइड किया गया है। एज यू कैन सी द स्केल नंबर 1 एंड स्केल नंबर 2 आर ग्रुप टुगेदर, nominal and ordinal, and combinedly it is considered as non-metric data। And when you combine level number 3 and level number 4 together, it is considered as your metric data। And whenever you are using non-metric data, typically we perform non-parametric test। ये क्या है? अभी पहली बार हमारा कन्फ्रंटेशन हो रहा है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के साथ। धीरे धीरे ये चीजें और क्लियर होती जाएगी, पर अभी इस स्क्रीन से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 4 स्केल्स है उसकी फिर से 2 बास्केट्स। पहली 2 सबसे नीचे के लेवल की स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इसको ग्रुप करके जो डेटा तैयार होता है उसको नॉन मेट्रिक डेटा कहते हैं। और नॉन मेट्रिक डेटा पे जनरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की परफॉर्म की जाती है। एंड व्हेन वी कंबाइन इंटरवल एंड रेशियो स्केल टुगेदर, इट इज कंसिडर्ड एज योर मेट्रिक डेटा, या फिर इनको कॉन्टिन्यूअस डेटा भी कहते हैं, कंटिन्यूअस। और इसको कहा जाता है डिस्क्रीट डेटा। तो इस डेटा पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म की जाती है, और इस पर्टिकुलर डेटा पे पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म की जाती है। तो हमारे इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में हमारा मेजर फोकस रहेगा पैरामेट्रिक टेस्ट पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वाइडली यूज होती है। नॉन पैरामेट्रिक में एक टेस्ट हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, वो है काई स्क्वायर। तो कल से ये टेस्टिंग हमारा शुरू होगा, पर अभी बेसिक फ्रेमवर्क आज के सेशन में समझने की कोशिश करते हैं। बात कर रहे हैं पहले लेवल की स्केल, जिसको कहा गया है नॉमिनल स्केल, या फिर नॉमिनल वेरिएबल और नॉमिनल डेटा, ऐसे 3 टर्म्स है। देखिए, कल मैंने आपके साथ एक स्प्रेडशीट शेयर की थी, डिस्कस भी की थी रादर, आपको भी याद होगा। इस पे हमने काम किया था कल। इसको कोडिंग किया था हमने, मेल फीमेल को 1 2 1 2 का, एज यू कैन सी। मैरिटल स्टेटस को मैंने अनमैरिड को 1 कहा था और मैरिड को 2 कहा था। आपके सामने ही मैंने ये सब डेटा शीट तैयार की थी, आपको याद होगा। और ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अभी आप देखेंगे जेंडर, ये जो वेरिएबल 1 है हमारा, ये तो स्ट्रिंग है, नेम स्ट्रिंग, इसका एनालिसिस नहीं करेंगे ना, एनालिसिस जेंडर का कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल 1 है, ये वेरिएबल 2, ये वेरिएबल 3। अभी ये जेंडर में मैंने मेरे क्वेश्चनियर में, सर्वे फॉर्म में क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज योर जेंडर, and I have provided my respondents with 2 options. Option A is male and option B is female. And the respondent is supposed to tick mark the right choice. मेल पे टिक करेंगे और फीमेल पे टिक करेंगे। और इसी तरीके से मेरा अगर 500 लोगों का सर्वे है तो मैं यहाँ पे ये डेटा फीड कर दूंगा, मेल फीमेल फीमेल वगैरह। और इसका मैं कोडिंग कर रहा हूं, मेल को मैं बोल रहा हूं 1 का कोड, और फीमेल को मैं बोल रहा हूं 2 का कोड। और एसपीएसएस में मैंने यही कोडिंग किया हुआ है। ये 1 2 1 2 यानी क्या, मेल फीमेल डेटा है। वैसा ही मैरिटल स्टेटस के लिए मैंने क्या किया है, अनमैरिड के लिए मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन था व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस,
ऑप्शन ए इज मैरिड, ऑप्शन बी इज अनमैरिड। और फिर मैंने इसका एसपीएसएस में एंट्री करते वक्त अनमैरिड को, स्पेलिंग देख लीजिएगा, अनमैरिड को मैंने 1 किया था और मैरिड को मैंने 2 का कोडिंग किया है, और ये कोडिंग मैंने यहाँ पे किया है। यानी क्या, ओवर हियर आई एम यूजिंग नंबर्स, as you can see 1212 are the numbers, but incidentally these are the codes. I have assigned codes to the categorical data. As you can see, male and female are the categorical choices under my variable gender. Therefore gender is considered as my categorical variable, and again marital status is considered as my categorical variable because I have provided my respondents with 2 choices. इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमारे क्वेश्चनर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चनर में जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम कैटेगोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। और कैटेगोरिकल क्वेश्चंस पे जो रेस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं उनको हम कैटेगोरिकल रेस्पॉन्सेस कहते हैं। और ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को ही हम नॉमिनल डेटा कहते हैं। अब इसको नॉमिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर यूज किए हैं 1212, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स हम लोगों ने कोड करके यूज किए हैं। इनको वी हैव असाइंड कोड्स टू द कैटेगोरिकल रेस्पॉन्सेस, and as such these numbers are simply defining or classifying our variable कि 1 यानी मेल है और 2 यानी फीमेल है। यानी क्या, we are simply giving identity to the categorical choices by assigning them some kind of numbers. And importantly ये जो हमने जेंडर का डेटा लिया है 1212 में, ये हमारे रेस्पोंडेंट नंबर्स है 1 2 3 4 5, लाइकवाइज 500 का डेटा है। और यहाँ हमने कोड्स असाइन किए हैं 1 1 2 1 2 2, लाइकवाइज ये ऐसा डेटा आ रहा है मेरा, मेल फीमेल वगैरह। ओके, अभी ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स सिर्फ इन रेस्पोंडेंट्स के जेंडर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 का जेंडर मेल है, रेस्पोंडेंट नंबर 2 का जेंडर मेल है, रेस्पोंडेंट नंबर 3 का जेंडर फीमेल है। और ये इंडिकेट करने के लिए हमने नंबर्स यूज किए हैं। और इन नंबर्स पे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। Mathematical operations we are not able to perform. Like I can't say this 1 plus 1 is equal to 2, यानी 2 मेल is equal to 1 फीमेल, ऐसा होगा क्या? No way. I can't say 2 minus 1 is 1. Means even I can't say 2 multiplied by 1 is 2. Getting me? Means I am not able to perform basic arithmetic operations on these particular numbers because these numbers are working as simply codes. The basic mathematical operators like plus, minus, multiplication, division is equal to, less than, greater than, इनको 7 को हम basic mathematical operators कहते हैं। And if we are not able to use any mathematical operators on the data that we have coded, then such kind of variables are considered as our nominal variables. और सिंपल सी भाषा में अगर एक्सप्लेन करना है तो नॉमिनल वेरिएबल्स ये कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। और हमारे क्वेश्चनर में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जेंडर ऑप्शन ए मेल फीमेल, एज ग्रुप ऑप्शन ए 18 to 28, ऑप्शन बी 29 to 38, लाइकवाइज। मींस हमारे क्वेश्चनर में जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपके रेस्पोंडेंट्स को एप्रोप्रिएट चॉइस पे टिक मार्क करना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप शायद यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मैं अगर सही में अभी आपको इस मोमेंट पे पूछता हूँ कि व्हाट इज योर जेंडर,
तो आप वहीं पे टिक मार्क करेंगे जो एक्चुअल आपका जेंडर है। जैसे मैं यहाँ पे टिक मार्क कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मेल। एज ग्रुप, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ बिकॉज आई माई एज रेंजेस इन बिटवीन दिस 39 to 48। और इसी को हम कहते हैं फैक्ट्स। These are the facts, and these facts we are collecting in the form of multiple choice questions, and the respondents are actually tick marking only on the appropriate choice, only on the appropriate choice, and actually one choice only they are tick marking. Such kind of data is considered as your nominal data. I think it is clear now. So nominal scales are used for categorical variables. As you can see, all these are just a name is string, mobile number. Again, it is, string you can consider because we are not going to perform any kind of analysis on mobile number. It is just for the sake of our information. Then city and district, again, it is string. Then gender is nominal because MCQ is there. Age group is nominal because multiple choice questions are there. Education level, again, it is coming in the form of fact. Like I will tick over here because actually my qualification, academic qualifications are above post graduation. Then my occupation, I will tick mark over here like I am a professional. Okay, and this is my actual profession, so I am only tick marking the appropriate choice. And as you can see, these are multiple choice questions. So such kind of questions का data जो हम generate करते हैं उसको nominal data कहा जाता है, और categorical variables को ही nominal variables कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये 7 mathematical operators होते हैं, and we are not able to use any of the mathematical operators on nominal data. We can't sum these codes, we can't even subtract these codes, even we can't multiply, divide, we can't even distinguish between the order of all this, and a male or female में बड़ा कौन छोटा कौन, actually we can't do that, कि मेल सुपीरियर है फीमेल से या फीमेल सुपीरियर है मेल से, we can't just actually comment on this. तो ऐसे पर्टिकुलर वेरिएबल्स को हम नॉमिनल वेरिएबल्स कहते हैं। जहां तक एनालिटिकल टूल्स का सवाल है, ऑब्वियसली इफ सपोज आप पूछ रहे, ये क्वेश्चन है कि आपका हाउसिंग कैटेगरी क्या है, सो फ्री ओन रेंट, ऐसे 3 कैटेगरीज है और आपने डेटा कलेक्ट किया है। फ्री वाले 96 है, 641 के ओन हाउसेस है, रेंटेड 163 है। आप इसको जो बोल रहे हैं, ये काउंट जो है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसीज, और इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेजेस में। तो नॉमिनल स्केल का जो डेटा आता है उसका इवेंचुअल प्राइमरी लेवल जो एनालिसिस होगा उसका हम फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो एसपीएसएस से अभी हम लोग बना रहे हैं। So frequency distribution table you can prepare. Along with this, you may prepare a pie chart for such kind of data. As you can see, इसी टेबुलर डेटा को मैंने पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। एंड एट द सेम टाइम आई मे प्रिपेयर अ कॉलम चार्ट। एज यू कैन सी द सेम डेटा आई हैव यूज्ड टू प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ ए बार चार्ट। एंड देन एज फार एज इंफरेंशियल स्टैटिस्टिकल टूल्स आर कंसिडर्ड, हम लोग इसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जो है काई स्क्वायर टेस्ट। हम इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में ये करने वाले हैं। डे 3 डे 4 पे देखते हैं कब टाइम मिलता है, अप्रोप्रिएट टाइम, पर ये मैं डेफिनेटली करा के दूंगा आपको। काई स्क्वायर टेस्ट वी कैन परफॉर्म, और ये नॉन पैरामेट्रिक है। और जैसे मैंने आपको बताया, नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल का डेटा आपके पास है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इंटरवल और रेशियो स्केल के डेटा पे हम पैरामेट्रिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अभी ये एंट्री लेवल की स्केल है नॉमिनल, ये सबसे पहली स्केल है, इसलिए इसमें ना एनालिटिकल टूल्स की चॉइस बहुत ज्यादा नहीं है, इसका बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं हो पाता है, इसलिए इसको लेवल 1 कहा गया है। उसके बाद आती है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल का मतलब है पुटिंग द थिंग्स इन ऑर्डर। पुटिंग द थिंग्स इन ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? चीजों को चढ़ते या फिर घटते क्रम में सजाना, और इसी को हम हमारी आम आदमी की भाषा में रैंक कहते हैं।
Whenever you are seeking any kind of a rank order data from your respondents, then that particular variable is considered as ordinal variable. And the question you are preparing to seek a rank order data from the respondents on some chosen categories, then that particular question is considered as ordinal scale question. So typically over here, your ordinal scale is telling us about relative positions of the objects. एक एग्जांपल लेते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाएगी. If suppose मैं ऑनलाइन रिटेलिंग को लेके कोई सर्वे कर रहा हूँ and I wish to know which of these is the most popular shopping site. Okay, and I have considered these 5 shopping sites, online shopping sites in my research. The one is Amazon, then Flipkart, Snapdeal, Jabong, and Myntra. And as a researcher, I just wish to know which one is the most popular and what is the second one, what is the third one, what is the fourth one, and what is the least popular website, shopping site amongst the online shoppers. So मेरे क्वेश्चनर में क्वेश्चन किस तरीके से जाएगा? Over here, I will mention the names of the companies, as you can see, which is I have done, and I am seeking a rank orders from the respondent. मैं इनको respondent को कह रहा हूँ कि इन shopping sites को आप rank करिए, आपकी पसंदीदा. 1 is for the most preferred and 5 is for the least preferred. If suppose मैं hypothetical कर रहा हूँ, if suppose Flipkart is my favorite shopping site, then the second one is Amazon. Then in my case, I consider Jabong is the third one, Snapdeal is fourth, and Myntra is fifth. This is my ranking. Accordingly, if suppose your sample size is 500, so 500 will put the things, means these shopping sites in their own ranks, you can say. They will put their own preferences, So if you are seeking responses in this particular sense, then actually we are using ordinal scale. Another example, वो shopping, online shopping का ही मैं example consider कर रहा हूँ. This time around, I'm just trying to seek the information that which types of products are most preferred to purchased by the online shoppers. कि सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट्स ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू परचेज किए जाते हैं. सो आई हैव मेंशन्ड ऑल दिस प्रोडक्ट कैटेगरीज and now I am asking my respondents to put the ranks. If suppose according to me, I prefer to purchase books through online retailers, then my second preference is household goods, and my third preference is accessories, fourth one is clothing, fifth one is, if suppose, electronic goods, and sixth one is cosmetic. These are my ranks, these are my preferences. Accordingly, I will ask my 500 respondents to put their own rank orders for all these product categories. And if you are preparing questions like this and you are presenting it in your survey form, then actually you are using ordinal scale. So as far as ordinal is concerned, out of these 7 mathematical operators, we can use these 2. नॉमिनल में हम सातों के सातों यूज नहीं कर पा रहे थे, पर लेस देन ग्रेटर देन ये यूज कर सकते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूं कि I'm saying, just for the sake of example, it is not actual. I am saying Flipkart I'm preferring over Amazon. So what I am doing, I'm using this greater than sign. At the same time, I'm saying Amazon is less preferred than Flipkart. Then I am using actually less than sign. Okay. So these 2 mathematical operators I'm able to use now for ordinal scale, and I am not able to use plus minus. Means I can't say rank number 1 plus rank number 2 is equal to rank number 3. मैं बोल रहा हूँ कि Flipkart is number 1, Amazon is number 3, and Jabong is number 3. So I can't say कि rank 1 plus 2 is 3. It is not possible. So these mathematical operators I am not able to use. But these mathematical operators I can use for ordinal scale.
So as far as analytical choices are concerned, we may compute median. नॉमिनल स्केल में हम मोड निकालते हैं। नॉमिनल में मोड, सिर्फ मोड ही निकलता है, ना ही उसमें मीडियन निकलेगा ना ही मीन निकलेगा। पर हम लोग ऑर्डिनल स्केल के लिए मीडियन निकालते हैं, और ये मीडियन क्या है मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर ही रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल टूल्स में इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की टेस्ट जो है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट या फिर स्पीयरमंस आपका रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है, दैट वी कैन कंप्यूट यूजिंग दिस काइंड ऑफ डेटा। देन द थर्ड स्केल इज कंसिडर्ड एज योर इंटरवल स्केल, और यहाँ से एक्चुअली हम लोगों को मीन मिलना शुरू हो जाता है। इंटरवल और रेशियो स्केल के डेटा में हमको मीन मिलता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल में हमको मोड और मीडियन मिलता है। और आपको भी मालूम है स्टैटिस्टिक्स में मीन का कितना इंपॉर्टेंस है। मीन आपको मिल जाता है तो आप पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हो, और इसीलिए इंटरवल और रेशियो स्केल पे जनरली हम लोग काम करते हैं, सो दैट हाइपोथेसिस की अच्छी टेस्ट जो है पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग परफॉर्म कर सकें। इसका मतलब क्या है, इंटरवल और रेशियो जो हम बोल रहे हैं, इंटरवल और रेशियो दोनों एक साथ ही बता रहा हूं मैं, हल्का सा डिफरेंस है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटरवल और रेशियो, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज योर न्यूमेरिक डेटा, इंपॉर्टेंट वन। over here you are able to generate data in numbers, in numeric sense, getting me? और आपको भी मालूम है जब आपके पास डेटा नंबर में आ जाता है तो ऑब्वियसली हमारे पास स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन का स्कोप बढ़ जाता है, आप उसका कुछ भी कर सकते हो। आपके पास नंबर में डेटा है, जैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर मंथली इनकम, रेस्पोंडेंट 1 2 3 4 लाइक 500। ओके, तो यहाँ पे रेस्पोंडेंट नंबर 1 का मंथली इनकम इफ सपोज 13,000 है, इसका 27,000 है, लाइकवाइज यहाँ पे अभी जो डेटा आ रहा है मेरे पास इनकम का, ये न्यूमेरिक सेंस में आ रहा है, एंड नाउ आई कैन कंप्यूट मीन ओवर हियर। आप इसका प्लस माइनस ये सब, इन सब की टोटल आप कर सकते हो कि 500 रेस्पोंडेंट के इनकम की टोटल कितनी है, दैट यू कैन इजीली डू। मीन्स आप प्लस माइनस ये सब जो है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब जो है आप परफॉर्म कर पाते हो। इसलिए इंटरवल और रेशियो स्केल का अपना एक इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। इंटरवल और रेशियो में फर्क क्या है वो समझा रहा हूँ। इंटरवल स्केल इज जनरली यूज इन बिहेवियरल रिसर्च, and if you happen to be a research scholar belonging to social sciences, social sciences I believe includes your sociology, then education, then physical education, then social work, political science, public administration, ये सब जो सब्जेक्ट्स है ये सोशल साइंसेस में, इवन इकोनॉमिक्स, यू नो, इवन ह्यूमैनिटीज के भी कुछ सब्जेक्ट्स, या फिर बिजनेस मैनेजमेंट के आप रिसर्च स्कॉलर है जिसमें आप कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड कुछ स्टडीज कर रहे हैं, या फिर एचआर के सेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज के सेंस में आप एम्प्लॉयज का बिहेवियर या एम्प्लॉय स्ट्रेस निकाल रहे हो। ये सब बिहेवियरल स्ट्रेस है, उनका मोटिवेशन लेवल आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जितने भी बिहेवियरल स्टडीज होती है उसमें इंटरवल स्केल जनरली यूज होती है। और इंटरवल स्केल का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं जनरली लिकर्ट स्केल की। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस प्रकार के अगर आपके क्वेश्चंस है, या फिर अवेयरनेस को लेके नॉट सो अवेयर, टू मच अवेयर, ऐसे जो होते हैं यू नो, या फिर वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, इस प्रकार का आपका डेटा है। तो एक्चुअली इस प्रकार के डेटा को ही हम इंटरवल का डेटा का कहते हैं। और खास करके आप देखेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होती है जिसमें हम कंस्ट्रक्ट्स को मेजर करते हैं। कंस्ट्रक्ट्स यानी आपको सपोज इमोशनल इंटेलिजेंस कंप्यूट करना है, या कल बात हो रही थी कंज्यूमर एटीट्यूड की, या कंज्यूमर परसेप्शन की, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यू नो, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब स्ट्रेस, ऐसे कुछ वेरिएबल्स पे हम काम करते हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स के सेंस में कंस्ट्रक्ट कहा जाता है। और ये कंस्ट्रक्ट मेजर करने के लिए जनरली हम इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं। इस तरफ होते हैं हमारे स्टेटमेंट्स जिनको आइटम्स या इंडिकेटर्स भी कहा जाता है।
और यहाँ पे हम एक 5 पॉइंट या 7 पॉइंट स्केल बनाते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। और हमारे रिस्पोंडेंट को हम कहते हैं कि अप्रोप्रिएट चॉइस पे उनका जो लेवल ऑफ एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट है उस पर वो टिक मार्क करें। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सर्वे फॉर्म में हैं तो एक्चुअली हम लोग इंटरवल स्केल यूज कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस जनरली हमारे क्वेश्चनर में होते हैं। आप देखेंगे एक हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग एटीट्यूड निकाल रहे हैं, एटीट्यूड टुवर्ड्स यूसेज ऑफ यूपीआई एप्स जैसे गूगल पे, फोन पे। इसके लिए हमने 5 क्वेश्चंस बनाए एटीट्यूड मेजर करने के लिए, इनको हम कहते हैं स्टेटमेंट्स। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट्स पूछे 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेटमेंट्स। और इस तरफ स्केल पूछिए स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। और रेस्पोंडेंट इफ सपोज हाइपोथेटिकली मैं ये पढ़ के मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, द यूज ऑफ मोबाइल पेमेंट ऐप इज ए गुड आइडिया, आई एम एग्री विथ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। द यूज ऑफ मोबाइल पेमेंट ऐप इज इंटरेस्टिंग, आई एम न्यूट्रल अबाउट दिस। यूजिंग मोबाइल पेमेंट ऐप इज a wise idea, I am agree with this. Using mobile payment apps saves my time. Yes, I'm strongly agree with this. Using mobile payment apps saves my money. I'm disagree with this. Okay. Now, as one of the respondent, I have filled this particular survey form. Now, what will I do? I will assign the course over here. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so accordingly this will be considered as 4, this will be considered as 3, this again 4, 5 and 1, and then I will total this. 4 plus 3 7 plus 4, 7 plus 4 11, 11 plus 5 16 plus 1 17. So what is this 17? It is called as Likert score, and this score is not having any kind of unit. It is not having any expressing unit. It is simply score of attitude. Got it? So interval scale में क्या हो रहा है? We are able to convert the tick mark data in scores. Importantly, आप देखेंगे यहाँ पे टिक मार्क ही किया है रेस्पोंडेंट ने, पर ये फैक्ट्स नहीं है। जो हम नॉमिनल में बात कर रहे थे, ये इनका ओपिनियन थे। ओके, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को लेके, और उनको हमने कोड किया है, और वो कोड का हमने एक स्कोर निकाल लिया है, और वो स्कोर का कोई यूनिट नहीं है। अगर आपके पास इस तरीके से डेटा आ रहा है तो हम इसको कहते हैं इंटरवल डेटा। और खास करके बिहेवियरल स्टडीज में जो स्केल हम लोग यूज करते हैं उन्हीं को हम लिकर्ट स्केल कहते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज कर पा रहे हैं? 7 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में से प्लस, माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, ये 4 सिंबल्स या ऑपरेटर्स हम यूज कर पा रहे हैं इन पर्टिकुलर डेटा पे। और इस पर्टिकुलर स्केल में जो जीरो होता है, इट इज आर्बिट्री जीरो, इट इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। आर्बिट्री जीरो यानी क्या? ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेके ये बंदा बोल रहा है कि आई एम न्यूट्रल अबाउट दिस, सो न्यूट्रल इज कंसिडर्ड एज जीरो, एंड जीरो ओवर हियर इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि न्यूट्रल मीन्स नो ओपिनियन, एंड नो ओपिनियन इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ओपिनियंस। जैसे मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर इज जीरो, इट डजंट मीन there is no temperature. Zero is also a temperature. So zero over here in interval scale is considered as arbitrary zero. And this is the major difference between your interval and ratio. जहां तक एनालिटिकल टूल्स की चॉइसेस का सवाल है, आप देख रहे हैं बास्केट बड़ी होते जा रही है, क्योंकि हम तीसरे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। जितनी ज्यादा ऊपर के लेवल पे आप ऑपरेट करोगे, आपको एनालिटिकल टूल की चॉइसेस ज्यादा होती है। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना पा रहा हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री वाले कितने हैं, डिसएग्री वाले कितने रिस्पोंडेंट्स है वगैरह, उसका मोड, उसका मीडियन, मीन मैं निकाल पा रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल पा रहा हूँ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल पा रहा हूँ, मैं टी टेस्ट कर पा रहा हूँ, जेड टेस्ट कर पा रहा हूँ, रिग्रेशन कर पा रहा हूँ, फैक्टर एनालिसिस, मैं इसका क्रॉसबैक अल्फा निकाल पा रहा हूँ, मैं एनोवा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। ये सब टेस्ट मैं इस पर्टिकुलर डेटा पे परफॉर्म कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डेटा जो आया है वो स्कोर में या फिर नंबर में आया है।
तो सभी पैरामीट्रिक टेस्ट आप इंटरवल स्केल के डेटा पे परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आती है चौथी स्केल जिसको कहते हैं रेशो स्केल, और ये सबसे ऊपर की स्केल है, और यहाँ पे भी जो डेटा आएगा ये न्यूमेरिक आएगा। अभी इंटरवल और रेशो में फर्क क्या रह गया? फर्क है यूनिट का। यानी हम लोग जो इंटरवल स्केल में डेटा लेके आ रहे थे, एटीट्यूड का स्कोर एक रेस्पोंडेंट का आया था 17, अभी जो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। और रेशो स्केल में अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि व्हाट इज योर वेट, मुझे एवरेज वेट निकालना है रेस्पोंडेंट का। 500 रेस्पोंडेंट को मैंने पूछा कि आपका वेट क्या है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन केजी। यहाँ पे भी नंबर्स ही आएंगे, 57, 63, 49 लाइकवाइज। इसका भी मैं एवरेज वेट निकाल पा रहा हूँ। एवरेज वेट यहाँ पे जो भी है वो आएगा, और उसके साथ कोई एक यूनिट लगेगा, केजी। अगर आपके पास डेटा है नंबर में और उसके साथ कोई एक्सप्रेसिंग यूनिट भी आ रहा है, तो ऐसे डेटा को हम रेशियो स्केल डेटा कहते हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंसेस, इनके अगर रिसर्च स्कॉलर है, तो हम लोगों के पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें हम लोग जनरली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त कोई ना कोई मशीन, कोई ना कोई ऑपरेटर्स, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट में एक फिगर आता है जिसके साथ जनरली कोई ना कोई एक्सप्रेसिंग यूनिट अटैच्ड होता है। अगर आपके पास ऐसा डेटा है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू with the help of machines you have generated, and the data is available in terms of numbers and the expressing unit, such data is typically considered as your ratio data। और ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, साइंस इंजीनियरिंग में ये डेटा जनरली जनरेट होता है, पर अगर आप सोशल साइंसेस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंटरडिसिप्लिनरी के रिसर्च स्कॉलर से और खास करके सर्वे बेस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ बिहेवियरल रिसर्च में बिलीव कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर में डेटा तो आएगा, पर वो डेटा को जनरली कोई एक्सप्रेसिंग यूनिट नहीं होगा, तो समझ लेंगे कि हम इंटरवल पे काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन यू। और आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रू जीरो होता है। ट्रू जीरो का मतलब है, इफ सपोज मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर वेट, एंड इफ समवन इज सेइंग जीरो, तो ऑब्वियसली उसका वेट नहीं है, मींस जीरो इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। मैं अगर आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज योर मंथली इनकम, एंड इफ यू आर सेइंग जीरो, देन आई विल कंक्लूड दैट you are not having any job, getting me? So your zero is indicating absence of the characteristics under consideration। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे के पूरे 7 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं आपके रेशियो स्केल के डेटा पे। और जितना भी स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ भी अवेलेबल है एनालिसिस के फॉर्म में, वो सब कुछ एनालिसिस आप रेशियो स्केल के डेटा के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये एपेक्स लेवल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका क्लियर है। हमने 4 प्रकार की स्केल्स देखी अभी तक पिछले 40 मिनट में, जिसमें नॉमिनल यानी कैटेगोरिकल डेटा, ऑर्डिनल यानी आपका रैंक ऑर्डर डेटा, तीसरा इंटरवल डेटा जो बिहेवियरल साइंसेस या बिहेवियरल रिसर्च में यूज होता है, और रेशियो स्केल डेटा जो एब्सोल्यूट न्यूमेरिकल सेंस में हमारे पास अवेलेबल होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सेकंड सेक्शन में, जहां पे हम बात करेंगे नॉमिनल डेटा का एनालिसिस एसपीएसएस में कैसे करते हैं। नॉमिनल स्केल का जो डेटा हमारे पास होता है उसका एनालिसिस एसपीएसएस में करना है, तो हमारे पास 2 चॉइसेस है। द फर्स्ट चॉइस इज यू may what we can say prepare frequency distribution table, and the second one is you can prepare cross tabulation। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कब बनाएंगे, और इसके ऑटोमेटिकली ग्राफ से बन जाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्राफ। ये आप एक वेरिएबल के लिए एक टाइम पे कर सकते हो, या फिर आपको कंबाइंडली 2 वेरिएबल का इफेक्ट देखना है, तो जिसको हम कहते हैं क्रॉस टैबुलेशन। सो नॉमिनल स्केल का एक ही वेरिएबल का एनालिसिस आपको करना है, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉमिनल 2 नॉमिनल वेरिएबल का एक साथ आपको एनालिसिस करना है, तो उसको कहते हैं क्रॉस टैबुलेशन। तो चलिए परफॉर्म करके देखते हैं। पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। मैं एक फाइल यूज कर रहा हूँ, कमांड्स में आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, और अभी एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम एनालाइज में जाएंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हैं आज,
उसमें फ्रीक्वेंसीज और उसके बाद फिर यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन आता है। बेटर वे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। Okay, I believe someone is unmuted. Please mute yourself. Okay, I hope you can see my SPSS screen now. So I have Yes, sir. opened, okay, I have opened this particular file and I have already made it ready to perform analysis so that we can save on time. हम लोग वेरिएबल व्यू में है अभी, एंड एज यू कैन सी आई हैव गॉट दिस 4 वेरिएबल्स, और इसमें से नेम ऑफ द रेस्पोंडेंट ये तो स्ट्रिंग है, इसका कुछ करेंगे नहीं. नाउ यू नो वेरी वेल व्हाट इज जेंडर, तो जेंडर इज नॉमिनल. You know very well why gender is nominal. Then marital status, again it is nominal. And for the time being, satisfaction, I have considered it as nominal, but we are not performing analysis on satisfaction because it is actually interval. इसका बाद में डिस्कशन करते हैं. फिलहाल मेरे पास दो नॉमिनल वेरिएबल्स है, जेंडर और मैरिटल स्टेटस. और जब भी आपके नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं तो उसके हम लोगों को वैल्यूज यानी कोड्स डिफाइन करने होते हैं. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड्स डिफाइन करके रखे हैं. वी कैन इंश्योर, एज यू कैन सी, 1 का कोडिंग मैंने मेल को किया है, 2 का कोडिंग मैंने फीमेल को किया है. डेटा चेक कर लेते हैं. ये मेरा डेटा है, एज यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं आप, कोड्स अवेलेबल है, मेल फीमेल और मैरिटल स्टेटस मैरिड सिंगल एज यू कैन सी. अभी मैं इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ. इसका मतलब क्या है, इफ सपोज मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ जेंडर, और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे डेटा में मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, और उसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज कंपोजिशन क्या है मेल फीमेल का. और इसका मैं पाई चार्ट और बार ग्राफ भी बनाना चाहता हूँ मेल फीमेल कंपोजिशन का. इसके लिए मैं जाऊंगा एनालाइज में, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर फ्रीक्वेंसीज. उसके बाद आपको जिस वेरिएबल का एनालिसिस करना है, अभी तो हम सिंगल वेरिएबल का कर रहे हैं, तो मैं जेंडर इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ इनपुट विंडो में. ये हमारे वेरिएबल्स हैं. और उसके बाद मैं जा रहा हूँ चार्ट्स में, और यहाँ पे मैं इफ सपोज इसका पहले बार चार्ट बना रहा हूँ, और आपको यहाँ पे देखेंगे चार्ट वैल्यूज जिसमें हमको चाहिए फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड नाउ आई एम प्रेसिंग ओके. As you can see, my frequency distribution table is ready with me now. This is my frequency distribution table. This is your what we can say statistics. Variable under consideration is gender, and n is sample size. So sample size is 25. Missing entries are 0. Then this is your distribution table. In this, males are 19, females are 6 in my survey, and total is, means this is my total sample size 25. Out of 25, 19 are male and 6 are female, and these are their respective percentages. So what will I say? In my survey, I have surveyed 76% male and 24% female, and these are respective cumulative percentage. And now I wish to exhibit this information with the help of a bar chart. As you can see, this bar chart is readily available with me, and you can see, and if you wish to put the labels over here, यहाँ पे आप देख रहे हो मेल और फीमेल का ग्राफ तो है, पर लेबल्स नहीं दिख रहे हैं, मेल कितने फीमेल कितने. तो you just simply double click over here on this particular chart. So this window will flash, and this window will offer you some editing options. और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि SPSS में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं एडिटिंग के, पर फिर भी आपको एडिटिंग करना है तो इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, और आपको डेटा लेबल शो करने हैं तो यहाँ पे आप शो डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे. As you can see, labels are exhibited now. 19 male are there and 6 female are there. और इसको अगर आपको आपके रिसर्च डॉक्यूमेंट, अगर आपका ये रिसर्च पेपर का काम है या फिर थीसिस का काम है, तो आप इसको सिंपली राइट क्लिक करके यहाँ जस्ट इसको ओपन करना होगा, क्योंकि वो एडिटिंग विंडो है. ये हमारी एक्चुअल आउटपुट है. यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे और किसी एक वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर देंगे.
So let me open a dummy Word document. So I will simply click Control V over here, and as you can see, you can easily import it in your Word document. Okay, so this way you can prepare frequency distribution table and bar chart. Now we'll just try to prepare a pie chart using same data. Let me do this for you. So again, I will go to analyze, then descriptive statistics, then frequencies, and then gender variable I am working with. या इसको वापस लेके जाते हैं marital status का करते हैं marital status, and then charts, and this time around I wish to prepare a pie chart. Then frequencies are on, then continue, press OK. So this is my frequency distribution table. ये जनरली थीसिस में रिपोर्ट करते हैं, और आपके जो रिसर्च पेपर के जो आपके एनालिसिस होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, उसमें इसका रिपोर्टिंग करते हैं परसेंटेज का, मेल कितने फीमेल कितने हैं। मैं आपको कुछ लाइव पेपर्स दिखा दूंगा, अभी मैं आज भूल गया, पर कल के सेशन में आपको मैं कुछ रियल लाइफ के पेपर्स दिखा दूंगा कि जिसमें ये इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ये जो हम लोग फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं और इसके परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये रिपोर्ट करते हैं रिसर्च पेपर में और थीसिस में भी। तो मैं कल कुछ आपको पेपर्स दिखा दूंगा। फॉर द टाइम में यू कैन टेक अ ग्लांस ओवर हियर। दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैरिड 21 है, सिंगल 4 है, और दीज आर रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस 84 and 16%, and we have exhibited this information in a pie chart. I'm double clicking it for editing purpose, and now I'm clicking you just simply right click over here and then press show data labels. So you will get this information. 16% are single and 84% are married. इसमें और कुछ एडिटिंग ऑप्शंस हैं, आप इसको जस्ट प्ले विद दिस। मैं हर एक ऑप्शन तो नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ डेप्थ ऑफ टाइम। ये एक अच्छा चॉइस होता है, एक्सप्लोर स्लाइस। as you can see, it will be exhibited like this, and then you close this window, and then this is your output window. You simply right click over here, copy it, and then you get this particular chart into your Word document by simply pressing Ctrl V. It is over here with you. Okay. So I have explained you in last 10 minutes or so how to प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स, और ये टेबल्स का डेटा यूज करके हम लोगों को इसका रिपोर्टिंग करना होता है थीसिस और रिसर्च आर्टिकल्स में। तो आपके जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, मैंने 2 का तो बता दिया, जेंडर और मैरिटल स्टेटस। वैसे ही आपका एज हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम का आप कर सकते हो नॉमिनल कंसिडर करके, या फिर आप सोशल स्टेटा कंसिडर कर सकते हो, कास्ट, रिलीजन, जो भी आपने ये डेमोग्राफिक और जिसको सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स कहते हैं, ये सब को आप इस तरीके से, क्योंकि ये सब आपके नॉमिनल वेरिएबल्स हैं, तो आप इसका एंट्री लेवल का एनालिसिस कुछ इस तरीके से कर सकते हो। अभी हम लोग इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि एक साथ 2 वेरिएबल, जिसको क्रॉस टेबुलेशन कहते हैं, वो कैसे तैयार करते हैं। देखते हैं 2 नॉमिनल वेरिएबल्स एक साथ, जिसको कहते हैं क्रॉस टेबुलेशन। तो कुछ नहीं, मैं डायरेक्टली वहां पे ये सेम फाइल में ही करके दिखा देता हूं आपको। दिस इज माय फाइल, और यहां मैं जा रहा हूं एनालाइज में, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट, एंड दिस टाइम अराउंड आई विल बी यूजिंग क्रॉस टैब्स। एंड नाउ I will have to select 2 variables. One is for rows and second is for column. If suppose I am taking gender into rows and marital status into columns, okay, and then you are simply supposed to click over here, display clustered bar chart, so that along with frequency distribution you will be getting a joint bar graph, and then simply press OK. So this is my case processing summary. This is the output. So case processing summary, we are considering 2 variables in one go, gender versus marital status. What is the total sample size? It is 25. Then missing entries are 0. This is what is called as case processing summary. This is your cross tabulation.
Why it is called as cross? Because we are considering two variables in one go. We are considering two variables. As you can see, the one variable is gender and second variable is marital status. Okay, now this is also called as contingency table, क्रॉस टेबल या फिर contingency table भी इसको कहते हैं. And this table is generally used while performing chi-square test, and we will perform chi-square test. So as you can see, how will we interpret it? In our sample, married male are 16, then single male are 3, and then married female are 5, and married single female is 1. And there are total 19 male in our sample and 6 female in our sample, and total married are 21 in our sample and 4 singles are there, and total sample size is 25. And if you wish to exhibit this particular information in a chart, this chart is called as your joint bar graph. This is called as your joint bar graph. Okay, again you may edit it. You just simply double click over here, then right click, and then show labels होगा यहीं पे कहीं. I can't see show labels here. Show data labels. Okay. So this way you can prepare this particular bar chart. इसको जॉइंट बार चार्ट कहते हैं, और सिंगल वेरिएबल के लिए जब बनाते हैं उसको सिंपल बार चार्ट कहते हैं. Okay, so we have performed analysis of nominal scale data for one variable and for two variables in one go. Now we'll proceed with our section 3. In section 3, we'll be computing summary statistics, यानी mean, mode, median, standard deviation, variance वगैरह. इसको पहले conceptually समझ लेते हैं, and then subsequently we will compute all the statistical measures using SPSS. So before getting into it, firstly we'll just clarify the concepts. What we are computing? We are computing summary statistics. Okay, और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. स्टैटिस्टिक्स की दो बास्केट्स, जिसमें पहली बास्केट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें आती हैं. पहला प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में फिर से दो चीजें, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मींस ग्राफ्स, जो हम लोग कर चुके हैं. यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एसपीएसएस में कैसे बनाते हैं वो देख लिया. विजुअल प्रेजेंटेशन, कुछ चार्ट्स, आने वाले समय में कुछ और चार्ट्स भी बनाएंगे हम लोग जैसे जैसे मौका मिलेगा, पर मैंने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है आपको. तो विजुअल प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी देख लिया. अभी बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की दूसरी बास्केट, दैट इज कॉल्ड एज समरी स्टैटिस्टिक्स. And in summary statistics, there are again 3 different baskets, as you can see. The first basket is called as measures of central tendency. The second basket is considered as measures of dispersion, and the third basket is considered as measures of symmetry या asymmetry. कुछ किताबों में इसको measures of asymmetry भी कहा है. It is totally up to you कि आप कौन सी book refer कर रहे हैं, पर generally it is called as measures of symmetry. Now we will get into it. कि ये जो बास्केट्स है, मेजर्स है. मेजर्स यानी आप जैसे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की बात करते हो तो मीन, मोड, मीडियन, ये मेजर्स हो गए ना सेंट्रल टेंडेंसी के. डिस्पर्शन के मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, एक एक करके देख लेते हैं सिस्टमैटिक तरीके से. पहले बात करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, जो कंप्यूटेशन हमको करना अपेक्षित होता है और जनरली हम लोग रिपोर्ट भी करते हैं. मैंडेटरीली रिपोर्टिंग होता है मीन का, खास करके जब आपके पास इंटरवल और रेशियो स्केल का डेटा है तो मीन का रिपोर्टिंग और स्टैंडर्ड डेविएशन का रिपोर्टिंग कंपलसरी है, जो मैंने आपको एक कल रियल लाइफ पेपर में भी दिखाया था कि रिपोर्टिंग कैसे करता है. इसका तो समझने की कोशिश करते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स है. सेंट्रल टेंडेंसी मींस व्हाट? यू हैव गॉट ए डेटा सीरीज. इफ सपोज 500 रेस्पोंडेंट्स का हमने इनकम लिया है,
Okay, this is ratio variable because it is in numbers and associated unit is rupees. Therefore, it is ratio. And it is zero income means absence of the phenomena. That is why we are considering income as a ratio variable. Now we have surveyed 500 respondents and we asked them their income. Likewise, such kind of data we have got. And now we are going to compute mean over here. What is central tendency? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है ये हमारी डेटा सीरीज है जिसको स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. Okay, so there are 500 different data points. Each particular entry or each particular response is considered as one data point. And we have got 500 such data points with us. Okay, now we are looking for only one such figures which may represent all these 500 data points. हिंदी में बता रहा हूं, हम लोग एक ऐसा नंबर कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये पूरे 500 डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये डेटा का जनरल नेचर क्या है, जनरल टेंडेंसी क्या है. और जब आप इस डेटा सीरीज की सेंट्रल वैल्यू, बीच में की वैल्यू, मिडल पोजीशन अगर निकालने की कोशिश कर रहे हो, द सिंगल वैल्यू which is centrally located, and such a centrally located figure which will represent the entire data series. Such kind of measures are considered as measures of central tendency, and there are three different measures. The first one is arithmetic mean, second one is median, and the third one is mode. एक एक करके देखते हैं. Arithmetic mean, nothing new about this. You know very well what is arithmetic mean. जो हम लोग स्कूल एज से ही करते आ रहे हैं, शायद आपने 5th या 6th स्टैंडर्ड में पहली बार एवरेजेस पढ़े होंगे. बस वही बात हो रही है, मीन की बात हो रही है. और मीन के जो सिंबल्स है, पॉपुलेशन के मीन को हम म्यू ये ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं और सैंपल के मीन को हम लोग एक्स बार ये लेटर से डिनोट करते हैं. और इसका फॉर्मूला आपको शायद मालूम होगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई, यानी ये आपकी 500 डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सैंपल साइज n 500. तो you will get mean of the data series. Nothing new about this. Then we'll talk about median. Median is considered as the positional average. Median is considered as positional average. What is positional average? आपके पास जो data series है income की, if you arrange this data series, all these 500 data points in ascending or descending order. If suppose हम इसको ascending यानी चढ़ते क्रम में सजा देते पूरे 500 डेटा पॉइंट्स को, तो उसमें जो सबसे बीच में की जो वैल्यू आएगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मीडियन. दिस इज द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन. आई हैव गॉट दिस ऑब्जर्वेशंस विद मी 2 4 5 6 7 8 9 एंड आई हैव अरेंज्ड दिस डेटा सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर. दो सबसे छोटा, उसके बाद फिर 4, उसके बाद फिर 5, लाइकवाइज. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर. वी हैव अरेंज्ड आवर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नाउ वी आर actually highlighting or identifying this middle located value, and this value is considered as median. And why it is called as median? Median is such a number which is actually dividing our data series into two equal halves. 50% of the observations will fall below median and 50% of the observations will fall above median. So this middle value of your data series, if we arrange that data series in ascending order, then that middle value is considered as median. Then about mode. Mode is considered as the most common value, the most occurred value. If suppose हम अभी मेरे ख्याल से 30 पार्टिसिपेंट्स है इस वर्कशॉप में, अंदाजे से बोल रहा हूँ मैं, तो रेस्पोंडेंट नंबर यहाँ पे है 1 2 3 4 5 up to 30 suppose. And now I'm asking you, what is your footwear size? Okay, size of the footwear, your footwear. आप शूज या चप्पल जो पहनते हैं उसका साइज क्या है? One by one I am asking you, and someone is saying 6, someone is saying 7, someone is saying 5, someone is saying 8, someone is saying 9.
Likewise, this way I will collect the data of all the 30 respondents, and if suppose I could get these entries. Okay, so such kind of data I will generate. Now I will observe which footwear size is most occurring. As you can see, 8 is occurring 3 times. Okay, the frequency of 8 is maximum. 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 दिख रही है। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। 8 3 बार और 9 सिर्फ एक ही बार. So in this particular sense, footwear size 8 is considered as my mode. So what is mode? Mode is the most commonly occurred observation in our data series. हमारी डेटा सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, उसको हम मोड कहते हैं. उसके बाद आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. डिस्पर्शन इज अबाउट डेविएशन और स्प्रेड इन योर डेटा सीरीज. आपके डेटा में स्प्रेड कितना है वो मेजर करने के लिए हम लोग जो मेजर्स यूज करते हैं उनको हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या फिर मेजर्स ऑफ डेविएशन कहते हैं. एंड मेजर्स ऑफ डेविएशंस आर प्रोवाइडिंग अस विद द डिग्री ऑफ स्कैटर. एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेविएशन यानी क्या. मेरे पास ये टोटल 1 2 3 4 5 डेटा पॉइंट्स है. ये है 1. एज यू कैन सी, ये 1 डेटा पॉइंट नंबर 1 की वैल्यू 1 है. डेटा पॉइंट नंबर 2 की वैल्यू 2 है. डेटा पॉइंट नंबर 3 की वैल्यू 3 है. ये भी 3 है डेटा पॉइंट नंबर 4. और ये है डेटा पॉइंट नंबर 5 की वैल्यू है 4. अभी मैंने क्या किया, इनको मैं बोल रहा हूँ ये मेरा वेरिएबल x है और ऑब्जर्वेशंस क्या है. पहला है 1, ये दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 3 और पांचवा है 4. इसका मैंने सम टोटल ले लिया, समेशन x. ये आ रहा है 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13. एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज 5. सो माय x बार यानी मीन कितना आ गया? 13 / 5. तो ये आ जाएगा 5 2 10, बचे 3, 5 6 ओके 2.6. ये वाला जो पॉइंट है ये 2.6 है. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज माय मीन लाइन. ये वाली मेरी मीन लाइन है. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी ये मीन लाइन से यहां से मेरा पहला ऑब्जर्वेशन कितनी दूरी पे है. ओके ये जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डेविएशन. मीन लाइन से मेरा हर एक ऑब्जर्वेशन, इसको मैं बोल रहा हूँ x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4 ऑब्जर्वेशन, ये है x5. तो हर एक x वैल्यू हमारी मीन लाइन से कितनी दूरी पे है उसको कहते हैं डेविएशन. और इसको d कहते हैं. ये एक्चुअली डेविएशन 1 हो गया. ये जो दूसरा पॉइंट है 2.6, ये 2.6 - 2, ये आ गया -0.6. इसको मैं बोल रहा हूँ d2. d2 इज -0.6. वैसे d3 निकाल लिया, ये हो गया 3 - 2.6, ये आ गया 0.4. इसको मैं बोल रहा हूँ d3. उसी तरीके से d4 और d5 निकाल लिया मैंने. इनको हम कहते हैं डेविएशन या फिर हमारे डेटा में स्कैटर कितना है. स्कैटर का मतलब है मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी दूरी पे है, उसको हम कहते हैं डेविएशन. ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो ये डेविएशन, ये स्कैटर हमारे डेटा में कितना है वो मेजर करने के लिए हमारे पास ये मेजर्स हैं, जिसमें सबसे एंट्री लेवल पे है रेंज, फिर क्वार्टाइल्स, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर वैरिएंस, फिर स्टैंडर्ड एरर. एक एक करके समझा रहा हूँ. यहाँ से शुरुआत करते हैं रेंज. रेंज ये एंट्री लेवल का स्कैटर बताता है. रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सिंपल है, आपकी डेटा सीरीज की आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे. कैसे निकालते हैं मैं स्पेसेस में बता ही रहा हूँ अभी. और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे. ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसी को हम रेंज कहेंगे. यानी क्या, हमारी डेटा सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, और इसके बीच में स्कैटर कितना है, फैलाव कितना है, वो बताने का काम रेंज करता है. तो रेंज इज कंसिडर्ड एज द एंट्री लेवल मेजर ऑफ डिस्पर्शन. और लॉजिकली ऐसा कहा जाता है कि रेंज जितनी कम होगी उतना बेटर. ऑब्जर्वेशंस एक सीमित दायरे में मिलेंगे. रेंज अगर बहुत बड़ी है
तो ऑब्वियसली जैसे इनकम, हमको एवरेज इनकम निकालना है और आपका रेंज शुरू हो रहा है कि 5,000 से 5 लाख, तो हम कहेंगे यार ये डेटा का नेचर कुछ सही नहीं लग रहा है, कि हमारा सैंपल शायद रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे सैंपल में 5,000 वाला भी आ गया है, 5 लाख वाला भी आ गया है। तो आइडियली हम लोग बोलेंगे अगर कि हमारे इनकम की रेंज जो है 60,000 से 80,000, इसको हम कह सकते हैं एक अप्रोप्रिएट रेंज है। तो रेंज जितनी छोटी होगी उतना डेटा का स्कैटर कम माना जाता है। फिर आता है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल ये मीडियन की तरह ही काम करता है। आप ये डेटा सीरीज को देखेंगे, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। ओके, अभी इस डेटा सीरीज के मैं 2 इक्वल टुकड़े कर रहा हूं। इसमें 12 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन इस तरफ और 6 ऑब्जर्वेशन इस तरफ। और यहाँ पे आ गया मेरा मीडियन। मीडियन इज डिवाइडिंग माई डेटा सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 50% इस तरफ, 50% इस तरफ। क्वार्टाइल क्या कर रहा है? क्वार्टाइल इज डिवाइडिंग अवर डेटा सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज दिस, सेकंड पार्ट इज दिस, थर्ड पार्ट इज दिस एंड फोर्थ पार्ट इज दिस। सो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 25% वाली, फर्स्ट 25% इज कंसिडर्ड एज क्वार्टाइल 1, Q1. Then median is considered as your Q2, quartile 2, and your Q3 is considered as your quartile 3. This is 75 percentile you can say in general. ये है 50% और ये है first 25% observations. ये हमारी 5 पॉइंट डेटा समरी है जिसमें हम बात करते हैं मिनिमम वैल्यू इन डेटा सीरीज, देन फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1, फिर Q2, फिर Q3 और फिर मैक्स वैल्यू, और इसको कंबाइंडली कहा जाता है 5 पॉइंट समरी डेटा। Excuse me. Then the most important concept is of standard deviation. ये चार्ट मैंने अभी आपको समझाया था, ये है हमारा 2.6, ये है हमारा D1, ये D stands for deviation, X is our observation, ये 1, 2, 3, these are our X values, 3, 3, 4, these are our X values. X bar is mean of this data series, which is 2.6. Okay, so we will be getting D1, D2, D3, D4 and D5. अगर अभी हमारे पास डेटा सीरीज क्या होगी, डी वाली डेटा सीरीज तैयार होगी। पहला है -1.6 ये वाला, फिर है -0.6 ये वाला, फिर है 0.4, फिर है 0.4 ये वाला, और फिर है 1.4। ये मेरी डेविएशन की डेटा सीरीज तैयार होगी। इसका मैं सम ले लूंगा और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। ये सम लेके मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा एवरेज डेविएशन। ये डेविएशन का एवरेज, इसको मैं कह रहा हूँ एवरेज डेविएशन, और एवरेज डेविएशन को स्टैटिस्टिक्स में मीन डेविएशन कहते हैं। नथिंग न्यू अबाउट इट। यानी मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या हो गया? एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेविएशन, ये समेशन डी ना, ये जो है ये वाला समेशन, यानी ये समेशन डी है, और समेशन डी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये n। पर समेशन डी क्या है? समेशन डी इज नथिंग बट दिस x माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, और यही फॉर्मूला हो गया हमारे एवरेज डेविएशन का। एवरेज डेविएशन निकालते वक्त सिर्फ एक लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे डेविएशंस के जो माइनस साइन आए हैं एवरेज डेविएशन निकालते वक्त इसको इग्नोर करते हैं। ओके, और ये डेविएशंस प्लस कंसीडर करके ही इसका एवरेज निकाला जाता है। अभी इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कम्स इनटू प्ले। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है कि ये माइनस साइन कंसीडर करना चाहिए। अभी ये माइनस का प्लस करना है तो हमको ये डी को डी स्क्वायर करना होगा। गॉट इट? यानी क्या, ये जो फॉर्मूला एवरेज डेविएशन का, इसी से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बनेगा। ये क्या होगा? हमने ये डी को स्क्वायर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन कंसीडर करना है, पर ये माइनस नहीं चाहिए, इसको प्लस करना है तो इसको स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला को मैं समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय n। अभी स्क्वायर तो कर दिया है, इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे इसको डालना होगा अंडर रूट में, और यही हमारा एस डी का फॉर्मूला है। गॉट इट? अभी एस डी एक आम आदमी की भाषा में मतलब क्या हो गया? एस डी इंडिकेट करता है कि ऑन एन एवरेज
हमारे डेटा सीरीज का हर एक डेटा पॉइंट उस डेटा सीरीज की मीन से कितनी दूरी पे है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या? हमारे डेटा सीरीज में जितने भी डेटा पॉइंट्स है, हर एक डेटा पॉइंट ऑन एन एवरेज उस डेटा सीरीज के मीन से कितनी दूरी पे है। ये डिस्टेंस जितना कम होगा, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये मेरे पास एक डेटा सीरीज है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.55 और ये एक डेटा सीरीज है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.82। आप देखेंगे इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड डेविएशन बेटर माना जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मीन से हर एक डेटा पॉइंट की दूरी कितनी है, ये डिस्टेंस है, ये डेविएशन कहते हैं हम लोग, स्कैटर। और ये स्कैटर जितना कम होगा वो डेटा सीरीज ज्यादा अच्छी मानी जाती है। यानी क्या, आप ओपिनियन ले रहे हो और सबका ओपिनियन एक जैसा आ रहा है एक सीमित दायरे में, हम बोलेंगे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलेंगे। अगर आप ओपिनियन ले रहे हो और कोई ताल ही नहीं है ओपिनियन में, डिस्टेंस देख रहे हैं स्कैटर्ड आ रहा है, तो आप कोई कंक्लूजन्स निकाल नहीं पाओगे। इसलिए ऐसा जो डेटा सीरीज है ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन स्मॉल एस, ये लेटर से डिनोट करते हैं। चलिए आगे जाते हैं। आगे का कंसेप्ट है वरायंस। वरायंस यानी कुछ भी नहीं, कंसेप्ट वही है, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देंगे आप। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में क्या किया है, हमने समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय n उसका अंडर रूट। अभी वरायंस बोल रहा है ये अंडर रूट भी गायब करना चाहिए, तो आप ये अंडर रूट को गायब करने के लिए इस सब का स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। यानी क्या, वरायंस है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है, कंसेप्ट वही है। उसके बाद क्विकली हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड एरर की। कल मैंने आपको एंडी फील्ड की किताब के बारे में बताया था। ये एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड एरर का, ये एंडी फील्ड की किताब से ही मैंने लिया है। समझा देता हूँ। ये देखिए, हमारे ये टारगेट पॉपुलेशन है जिसमें से हम सैंपल्स निकालने वाले हैं। आपको भी मालूम है कि टारगेट पॉपुलेशन में संख्या जो है वो ज्यादा होती है, ये कभी हजार, लाख या कभी करोड़ में भी होती है। और हमारे सैंपल साइजेस जनरली 200, 400, 500, 1000, 1200 ऐसे ही होती है। टारगेट पॉपुलेशन की संख्या लाख, करोड़ में, और सैंपल साइजेस 1000, 1200 में। अभी जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू द कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरी टारगेट पॉपुलेशन है, ये टारगेट पॉपुलेशन में से मैंने एक सैंपल साइज लिया 200 का। ये इफ सपोज ये है 10 लाख टारगेट पॉपुलेशन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करता है। ओके, ये 10 लाख में से मैंने एक सैंपल निकाला 200 का। एक वेरिएबल है मेरा इफ सपोज इनकम, और मैंने 200 लोगों को इनकम पूछा, इसका मैंने एवरेज निकाला। इसको मैं कह रहा हूं x बार 1, एवरेज इनकम ऑफ दिस 200। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये 200 को छोड़ के फिर से एक नॉन ओवरलैपिंग सैंपल ले रहा हूं 200 का, जिसको मैं बोल रहा हूं सैंपल नंबर 2, सैंपल साइज इज 200। फिर इनका इनकम पूछा और इनका मैंने मीन पूछ लिया, मीन निकाल लिया, जो मैं बोल रहा हूँ x बार 2। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे n3, n4, n5, n6, n7, n8 और n9 ऐसे 9 सैंपल्स लिए। तो ऑब्वियसली मेरे पास ये सैंपल्स के मीन 9 मीन आ जाएंगे, x बार 1, x बार 2, x बार 3, लाइकवाइज अप टू x बार 9। गॉट इट। अभी मैं इसका फिर से एक मीन निकाल पाऊंगा जिसको कहते हैं ग्रैंड मीन, जिसको कैपिटल एक्स बार से डिनोट करते हैं। मीन ऑफ मीन इज कंसिडर्ड एज ग्रैंड मीन, ये जो भी आएगा। अभी आपको ये मीन मिल गया तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल पाओगे इसका। गॉट इट। आपके पास मीन है तो ये मीन से ये मीन कितने दूरी पे, जिसको हम डेविएशन कर रहे हैं, और उसका फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अभी एसी यानी क्या, एसी ये यहां पे पढ़ेंगे आप, AC इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी ये जो सैंपल मीन्स है एक ही टारगेट पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल्स निकाल के उसका जो ग्रैंड मीन निकाला है वो यूज करके जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। और स्टैंडर्ड एरर हमारे डेटा सीरीज के मीन के कंपैरिजन में जितनी कम होगी उतना बेटर हमारा डेटा माना जाता है, हमारा सैंपल रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा माना जाता है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम सैंपल साइज बढ़ाते जाएंगे वैसा वैसा हमारा स्टैंडर्ड एरर जो है, यहाँ पे नीचे देखेंगे आप,
स्टैंडर्ड एरर ये धीरे धीरे कम होते जाता है, 2.52, 0.81, 0.76, 0.70। जैसे जैसे सैंपल बढ़ाओगे स्टैंडर्ड एरर कम होते जाएगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड एरर जितना कम होगा उतना बेटर आपका डेटा माना जाता है। तो कंसेप्चुअली ये मैंने सब आपको पढ़ा दिया है। अभी तीसरी बास्केट जो है हमारी समरी स्टैटिस्टिक्स की, दो बास्केट्स देखी हमने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज जिसमें मीन मोड मीडियन, उसके बाद फिर हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस देखे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, उसके साथ साथ हमने रेंज देखी, क्वार्टाइल्स देखे, ओके, एवरेज डेविएशन भी समझ लिया है। अभी लास्ट मेजर या लास्ट बास्केट समरी स्टैटिस्टिक्स को जिसको कहते हैं मेजर्स ऑफ सिमेट्री या असिमेट्री, इसमें दो ही मेजर्स है, स्क्यूनेस और कर्टसीज। ये क्या है मैं समझा रहा हूँ। देखिए स्टैटिस्टिक्स में कल से जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी कल से शुरू करेंगे तो उसमें आपको एक कंसेप्ट में पढ़ाने वाला हूँ जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। यानी क्या, आपने जो डेटा सीरीज तैयार की है, आपके जो वेरिएबल्स है, सपोज एक्स वेरिएबल है, इस पे आपने न्यूमेरिक डेटा यानी इंटरवल या रेशो का डेटा लिया हुआ है। ये डेटा 500 लोगों का है, ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, ये चेक करना होता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी क्या, इसका अगर हम प्लॉट बनाते हैं तो इसको क्या इस तरीके का शेप एज्यूम हो रहा है ये डेटा सीरीज को। अगर ये हो रहा है तो हम इसको पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर शेप ऐसा नहीं आ रहा है तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है वो जानने के लिए दो मेजर्स हैं, एक है स्क्यूनेस और दूसरा है कर्टसिस। समझने की कोशिश करते हैं। पहले बात करते हैं स्क्यूनेस की। ये स्क्यू से ये शब्द बना है स्क्यूनेस। स्क्यू इज अबाउट टिल्ट। टिल्ट का मतलब है झुकाव एक तरफ। एक थोड़ा सा इलिस्ट्रेशन दिखा दो, पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन, जिससे चीजें आसान हो जाएगी। हमने एक्स वेरिएबल पे डेटा कलेक्ट किया और वो डेटा का हमने हिस्टोग्राम बना लिया, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम बनाने के बाद आप देख रहे हैं मेरा डेटा का, मैं इसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर रहा हूँ, ये इसके जो पिक पॉइंट्स है उसको आप देख रहे हैं। मेरे डेटा का स्प्रेड ऐसे आ रहा है, यहाँ पे मेरी टेल फॉर्म हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट टेल। और अगर आपके डेटा का मैपिंग कुछ ऐसे हो रहा है तो यहाँ टेल फॉर्म हो रही है राइट हैंड साइड में, यानी आपके डेटा का कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे ज्यादा है, ये डेटा पॉइंट पे सबसे ज्यादा आपका डेटा आया है और इन डेटा पॉइंट्स पे कम ऑब्जर्वेशन आए हैं। यानी क्या, डेटा एक तरफ झुका हुआ है, एक तो लेफ्ट में या फिर राइट में। ऐसे डेटा को हम स्क्यूड डेटा कहते हैं। और एक्चुअली हमारा डेटा ऐसा नहीं आना चाहिए, हमारा डेटा कुछ ऐसा आना चाहिए जिसको कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। आप देख रहे हैं इसको बेल शेप कव आ रहा है अभी, और इसको हम कहते हैं नॉन स्क्यूड डेटा या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, बेल शेप। अभी हमारे डेटा को ये ऐसा शेप आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके लिए जो हम कंप्यूटेशन करते हैं उसको स्क्यूनेस कहते हैं। और स्क्यूनेस हम अभी स्पेसेस में मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। स्क्यूनेस के मेजर आप देखेंगे ये एक ही स्क्रीन में, ये है आपका निगेटिवली स्क्यूड डेटा, ये है पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा, और ये है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। एंड एक्चुअली वी शुड स्ट्राइव फॉर दिस। तो हमारे डेटा का स्प्रेड ऐसा आ रहा है क्या, ये वो जानने के लिए हम लोग स्क्यूनेस निकालते हैं। और स्क्यूनेस अगर -1 से कम आ रहा है और +1 से ज्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे हमारा डेटा का स्प्रेड जो है वो बहुत ज्यादा हाईली स्क्यूड डेटा है। अगर हमारे स्क्यूनेस का मेजर -1.5 और -0.5 या फिर +0.5 और +1 के बीच में आता है तो हम कहते हैं हमारा डेटा मॉडरेटली स्क्यूड है। और आइडियली हमारे स्क्यूनेस का मेजर -0.5 और +0.5 के बीच में आना चाहिए। और एक किताब ये कहती है कि आपका स्क्यूनेस का मेजर -1 और +1 के बीच में है, ओके, -1 और +1 के बीच में, तो हम कहते हैं हमारा डेटा नॉन स्क्यूड है। उसी तरीके से कर्टसिस, कर्ट ये इसको कहते हैं हम्प। कर्ट ये हम्प यानी कैमल के पीठ पे जो हम्प होता है ना उसको कर्ट कहते हैं, यानी ये बताता है हाइट। ये देखेंगे ये 3 पिक्चर्स है, आप देख रहे हैं मेरे पास ये डेटा है जिसको बेल शेप आया है और इसकी एक ऑप्टिमम हाइट भी होती है, इसको कहते हैं ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल की एक ऑप्टिमम आइडियल हाइट होनी चाहिए, ये आइडियल हाइट है। अगर ऐसा डेटा है तो इस डेटा को हम नॉन स्क्यूड डेटा कहते हैं और मेसोकर्टिक कहते हैं, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे बेल शेप तो आ रही है
पर ये हाइट, ये जो नॉर्मल हाइट है इससे ऊपर गई है। इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक डेटा, जो हमको नहीं चाहिए होता है। उसके बाद है तीसरा पिक्चर, जहां पे आप देखेंगे कि नॉर्मल हाइट से इसकी हाइट कम है पर बेल शेप तो आ रहा है, नॉन स्क्यूड है पर हाइट नहीं मिल रही है। ऐसे डेटा को हम कहते हैं प्लेटोकर्टिक डेटा, और ये भी हमको नहीं चाहिए होता है। हमको चाहिए होता है आइडियली ये सिचुएशन। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसमें भी आपका कर्टसिस का फिगर -1 और +1 के बीच में कहीं आता है तो हम कहेंगे हमारा डेटा मेसोकर्टिक है, यानी हमारे डेटा की हाइट जो है उसको प्लॉट करने के बाद ऑप्टिमम आ रही है। चलिए, अभी ये जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है, मीन, मोड, मीडियन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वैरिएंस, स्टैंडर्ड एरर, स्क्यूनेस, कर्टसिस, ये सब हम एसपीएसएस में कैसे कंप्यूटेशन करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको लाइव। एक डेटा शीट ओपन कर रहा हूँ, यही डेटा शीट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। समरी स्टैटिस्टिक्स ये फाइल है। देखिए मेरे पास इनकम को लेके कुछ डेटा है जो रेशियो स्केल का डेटा है। आप देखेंगे इसको डिफाइन कर लिया है, इनकम न्यूमेरिक, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। देन वैल्यूज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रेशियो स्केल का डेटा है और स्केल वेरिएबल है। ओके, अभी ये मेरे पास डेटा है, इसके मुझे समरी स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटेशन करना है। मैं जाऊंगा एनालाइज में, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट, फिर फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद इस इनकम वेरिएबल को ट्रांसफर कर लेंगे इस तरफ। उसके बाद हम जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में, और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे विंडोज है। सबसे पहले हमने जो सीखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसमें मीन है, मीडियन है, मोड है। आपको सम टोटल चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, जहाँ पे चेक बॉक्सेस में आपको सिंपली क्लिक करना है, मीन, मीडियन, मोड, सम टोटल ऑफ द डेटा सीरीज। उसके बाद देख लेते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो हमने पढ़ाए थे, जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमको चाहिए, वैरिएंस चाहिए, रेंज चाहिए, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड एरर। ओके, ये सब हमने पढ़ा था अभी, वो सब मैंने चेक बॉक्स में क्लिक किए हैं। फिर है मेजर्स ऑफ सिमेट्री और सिमेट्री, यानी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा सीरीज का शेप और हाइट कैसे आ रही है, तो इसमें स्क्यूनेस और कर्टसिस। और उसके बाद डिस्पर्शन के जो मेजर्स हमने देखे थे क्वार्टाइल्स, वो यहाँ से मिलेंगे आपको। क्वार्टाइल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये बोल रहा है आपको क्वार्टाइल्स कितने चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 4 ही चाहिए आपको, Q1, Q2, Q3। तो मैं डेटा पॉइंट को कट कर रहा हूँ 4 में क्वार्टाइल्स। बस मैंने रिस्पेक्टिव कमांड सभी दे दिए हैं, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए, जो भी मेजर्स मुझे चाहिए स्टैटिस्टिकल। नाउ मैं यहाँ कंटिन्यू प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ ओके प्रेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे एसपीएसएस ने मुझे एक ही स्ट्रोक में पूरे के पूरे स्टैटिस्टिकल मेजर्स कंप्यूट करके दिए हैं। आप देखेंगे लेबल में मैंने ये टाइप किया था, दिखा देता हूँ एक बार, कल जो मैं बता रहा था कि आउटपुट में आपको क्या चाहिए। देख लेते हैं स्प्रेडशीट। ये स्प्रेडशीट है, वेरिएबल व्यू। आप देखेंगे वेरिएबल का नाम इनकम दिया है और लेबल मैंने क्या लिखा है, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। और जैसे मैं आपको बता रहा था, लेबल में जो लिखोगे आप आउटपुट में वही दिखेगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हो तो ये दिखेगा। तो मैंने यहाँ लेबल लिखा है, इसलिए इसी फॉर्म में आपको आउटपुट मिला होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला मेजर हमको मिला है सैंपल साइज कितना है, तो 23 का है। मिसिंग एंट्री 0 है। मीन मिल चुका है हमको। स्टैंडर्ड एरर है। उसके बाद मीडियन है, मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वैरिएंस है, स्क्यूनेस है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस है, कर्टसिस है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ कर्टसिस है, रेंज है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सम टोटल। और ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। तो एक ही स्ट्रोक में एसपीएसएस ने हमको ये कंप्यूटेशंस करके दिए हैं। So this is how we typically compute summary statistics using SPSS. तो it is dot 430, dot 3 को शुरू किया था, dot 430 को खत्म हुआ है। आज के सेशन को लेके कुछ डाउट्स है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑर्गेनाइजर्स। Thank you very much, sir. It's a very fantastic session. Sir, one question from Dr. Arun Kumar Mandal, sir. Are you able to see, sir? Or Yes, I I read, can sir? read. I can read, sir. How can we measure ANOVA? Suppose
Null hypothesis is there is no significant difference of students, teachers' attitude towards online classes at B.Ed level between rural and urban. ठीक है, ठीक है, ये एनोवा का क्वेश्चन है। अभी आज हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किया है, हम लोग कल से हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं। और आपने ये जो पूछा है ये 2 वे एनोवा का लग रहा है, तो जब मैं एनोवा पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप इसको। I think, Patel sir, you can understand that tomorrow we will run this topic. कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। कल से हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं, अभी 3 दिन बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये एनोवा पढ़ाने वाला हूँ, तो उस वक्त मैं ये डेफिनेटली एड्रेस कर दूंगा। इस लेवल पे मैं कोई कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहता, और ये ऐसे 2 मिनट में समझाने वाली बात नहीं है, ये एक एग्जाम्पल लेके ही मुझे समझाना होगा। शर्मा मैम, यू हैव रेज्ड द हैंड। यस सर, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पूछना चाह रही थी कि आपने ma'am. जो स्टैंडर्ड एरर बताया था, हम्म, तो सर इसमें हम जो मीन लेते हैं, एक जैसे मेरी थीसिस में 3 वेरिएबल्स हैं, एक इमोशनल इंटेलिजेंस पर है, एक पर्सनालिटी पर है और एक क्लासरूम टीचिंग पर है। राइट मैम। तो हमने तीनों के अलग अलग लिए पहले, राइट? फिर हमने तीनों का एक साथ भी निकाला है। एक्चुअली मेरी अच्छा। जो कैलकुलेशन है वो मैम ने कराई है, मुझे क्लियर नहीं था थोड़ा सा, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। व्हाट इज योर क्वेश्चन मैम? सर मतलब तीनों जो टॉपिक हैं, तीनों चीजें हैं, उनका हमने 3 क्वेश्चन आर पे हमने मीन निकाला तीनों का अलग अलग। ठीक है। फिर उन तीनों का एक साथ भी निकालते हैं, तीनों के जो मीन आए हैं उन तीनों को प्लस करते क्या करते, कैसे नहीं निकालते नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, अभी आपने देखा होगा कि मेरे पास तो इनकम ये एक ही वेरिएबल था ना, जी जी और उसका भी स्टैंडर्ड एरर हमको कैलकुलेट करके दिया है। वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, सिर्फ समझने वाली बात ये है कि वो जो स्टैंडर्ड, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ जो अभी हमने जनरेट किया था। जी, कि 3 Let है me तो फिर share. तीनों पर कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Okay, I hope you can see my screen now. यस सर। Okay, this is my single variable income and there are 23 respondents जिनका मैंने income measure किया है। इसका मीन निकाला है 47.95 and this is AC standard error। ये आया है 2, which is very less if we compare it with mean। As you can see mean 47 है, उसके comparison में error जो है वो 2 है। What does this mean? Your sample is representative and your mean is also representative. Whatever mean you have computed, whether it is indicating the true picture, this is the measure, standard error indicates that thing। और आप जो पूछ रही है अभी, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस आपने मेजर किया है स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, और किसका? सर एक फैक्टर ये लिया, एक पर्सनालिटी ट्रेट लिया और एक क्लासरूम टीचिंग लिया। इन तीनों पर हमने मीन निकाला। हाँ हाँ, तो इसका एक साथ एक कंपोजिट मीन आपको निकालना है, ऐसा बोल रही है आप, तो कैसे हाँ जी निकालेंगे? हाँ जी हाँ जी। तो मैडम ये तीनों डेटा सीरीज जो है एक के नीचे आप पेस्ट कर देंगे, उसको एक कोई तो भी कंपोजिट आप वेरिएबल को डिफाइन कर लेंगे। लेट मी शेयर, लेट मी शो यू। जैसे मैंने यहाँ इनकम लिया है 23 का, तो आपके जितने भी है आपके कैटेगरीज या वेरिएबल्स में डेटा, आप एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। जी उसके बाद फिर एनालाइज में जाके यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैट में जाके फ्रीक्वेंसीज और देन स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ से मीन आप निकाल लेंगे, तो ये कंपोजिट मीन मिल जाएगा आपको। ओके कंपोजिट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। जी। और 3 वेरिएबल्स का एक साथ करना है, तो आप वेरिएबल 1 यहाँ, वेरिएबल 2 यहाँ, वेरिएबल 3 यहाँ पेस्ट करेंगे, और ये पूरे के पूरे 3 वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे एनालाइज में जाके, डिस्क्रिप्टिव स्टैट में जाके, फ्रीक्वेंसीज में जाके, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है मेरी लिस्ट में, मैंने इसको यहाँ इंपोर्ट कर दिया। आपके पास यहाँ 3 है, तो तीनों को यहाँ इंपोर्ट कर दीजिए, और फिर स्टैटिस्टिक्स निकालिए तीनों का मीन का, तो तीनों डेटा सीरीज के मीन एक साथ मिल जाएंगे आपको आजू बाजू में ही। ओके गॉट इट मैम? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। ओके मैम। Any other question, participants? शर्मा मैडम, I think
आपका डाउट क्लियर हो गया? और कोई यस यस सर। और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा एनी अदर पार्टिसिपेंट्स? I think there is no more question. I think we should conclude here. Thank you very much, sir. आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है पूरा सेशन हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर किसी आज के कुछ लोगों का पूछना है तो आप सभी आइए। डिमांड कर रहे हैं कि थियरी और प्रैक्टिकल एक साथ करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो सब लोग रिकॉर्डिंग की लिए डिमांड कर रहे थे। मैं सबको बता रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप we will share a whole day FTP as a day wise recording of schedule FTP. आप लोग day wise जो है आपको रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर करेंगे। आप डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर फॉर today's session. Thank you Baldev sir. Thank you all the participants who joined today's workshop, and we will wind up today's session here with the prior permission of sir. Sir, we should. Sure, sir. Sure. If respondents are not having any questions, we can conclude now. So, with your permission, sir, may I leave the meeting now? Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, participants. See you tomorrow. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Baldev, sir. Should we leave? Thank you, sir.